السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ہاکی اور ہاکی کا جادوگر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم یونان اور ایران میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو اس کھیل کی دعوت دیتے تھے۔ کھیل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چلتا تھا، یعنی صبح سے شام تک۔ گول کئی کئی میل کے فاصلے پر ہوتے اور ہر ٹیم میں تقریباً 1000 کھلاڑی ہوتے تھے۔ کھیل اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کے سر پھٹ جاتے اور ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ جاتے تھے۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رود بار انگلستان پار کر کے انگلستان یعنی انگلینڈ پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے۔ اسکول کے لڑکے جنگلوں سے چھڑیاں کاٹتے اور ان کو موڑ کر گیندوں سے ہاکی کھیلتے۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، بعد میں ایک ٹیم کے لیے 11 کھلاڑیوں کی تعداد طے کر دی گئی۔ ہاکی کا میدان 100 گز یعنی 91 میٹر لمبا اور 60 گز یعنی 54 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں میدانی ہاکی یعنی فیلڈ ہاکی کے علاوہ بند اسٹیڈیم میں برف پر ہاکی، آئس ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے 1885 میں پہنچا۔ 1885 ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ ہندوستان نے پہلی دفعہ 1928 کے اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس کے بعد کے تقریباً 40 سال تک ہندوستانی ٹیم ہاکی کے کھیل میں ساری دنیا پر چھائی رہی۔ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ الہ آباد کے ایک راجپوت خاندان میں 29 اگست 1905 کو پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور میجر کے عہدے تک ترقی کی۔ وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک عظیم کھلاڑی بن گئے۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جب پہلی بار اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو فائنل میں ہندوستان اور ہالینڈ کا مقابلہ تھا۔ دھیان چند اور ٹیم کے دوسرے ساتھی اچانک بیمار ہو گئے۔ کپتان بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ٹیم کے مینیجر نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ دھیان چند کو تیز بخار تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو فوجی ہوں اور ایک فوجی کو دلیری کے ساتھ جنگ میں جانا ہی چاہیے۔ چنانچہ ہندوستانی ٹیم تمام طاقت بٹور کر میدان میں کود پڑی۔ اس میچ میں ہندوستان نے ہالینڈ کو 3 گول سے ہرایا، جن میں سے 2 گول دھیان چند نے کیے تھے۔ 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان چنا گیا۔ فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان تھا۔ یہ مقابلہ بڑا سخت ثابت ہوا۔ میچ کے درمیان گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ گیند کو اپنے قابو میں رکھنے کی اس عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی حیران رہ گئے۔ مقابلے کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہے جو گیند کو اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ چنانچہ دھیان چند کو دوسری اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھڑا دھڑ گولوں کا تانتا باندھ دیا۔ اب جرمن حکام کو یقین ہو گیا کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچکدار اور مضبوط کلائیوں کا ہے۔ وہاں کے تماشائیوں نے اس وقت سے دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس اولمپک میں ہندوستانی ٹیم نے کل 38 گول کیے، جن میں سے 11 اکیلے دھیان چند ہی نے کیے تھے۔ ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو سکی ہے، اس کا سبب ہے میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت۔ میجر دھیان چند نوجوان کھلاڑیوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ذاتی شہرت یا نام کے لیے نہیں، بلکہ پوری ٹیم کو یکجان ہو کر کھیلنا چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن ہو۔ ہاکی کے جادوگر کا انتقال دلی میں 3 دسمبر 1979 کو ہوا۔ ادارے کی طرف سے یہ رپورٹ۔ معنی یاد کیجئے۔ قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانا، قبیلہ کا معنی ہوتا ہے مشترکہ نسلی خصوصیت رکھنے والا گروہ، طلوع آفتاب، سورج نکلنا۔
गुरूब आफ्ताब का माना है सूरज डूबना। रूदबार इंग्लिस्तान इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समुद्री रास्ता। ज़ाब्ता कायदा कानून के माना में है। मुकर्रर का माना है तय किया हुआ। स्टेडियम का माना है खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेल देखने वालों का भी इंतज़ाम हो। खलबली इसका माना है हलचल, शोर शराबा, हंगामा। फाइनल इसका माना है आखिरी। तलाई तमगा इसका माना है सोने का मेडल। मुकम्मल का माना है पूरा। मेजर का माना है फौजी अफसर। भर्ती का माना है दाखिल होना, दाखिला। मैनेजर का माना है मुंतजिम, मोहतमिम। ओलंपिक हर 4 साल बाद एक मरतबा होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले। स्टिक हॉकी खेलने की छड़ी। जानिब का माना है तरफ। जर्मन का माना है जर्मनी का रहने वाला। हुक्काम ये हाकिमों की जमा है। अफसरान के माना में। शोहरत का माना है मशहूर होना, नाम रोशन होना। इसका माना है इज्जत हासिल करना, शोहरत पाना। गोलों का तांता बांध दिया यानी लगातार कई गोल किए। सोचिए और बताइए हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए। सवाल नंबर 1। तो इसका जवाब होगा हॉकी खेलने के लिए एक बड़ा मैदान चाहिए, तकरीबन 100 गज। कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था। कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल यूनान और ईरान में खेला जाता था। उसके बाद सवाल नंबर 3 हम देखते हैं। सवाल नंबर 3, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे। तो सवाल नंबर 3 का जवाब होगा फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकेट कहते थे। सवाल नंबर 4, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए। सवाल नंबर 4 का जवाब होगा इंग्लैंड में इसका नाम हॉकी रखा गया और वहीं इसके ज़ाब्ते बनाए गए। सवाल नंबर 5, आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है। इसका जवाब है आइस हॉकी बंद स्टेडियम में बर्फ पर खेली जाती है। इसे अमेरिका और कनाडा वगैरह में खेला जाता है। सवाल नंबर 6, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका जवाब है कि हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 7, ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। इसका जवाब होगा ध्यानचंद हॉकी के एक मशहूर खिलाड़ी थे। उनकी पैदाइश इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त 1905 को हुई। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया। जवाब, ध्यानचंद और टीम के बकिया खिलाड़ी अचानक बीमार पड़ गए थे और कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। तब सबका हौसला बढ़ाने के लिए टीम के मैनेजर ने टीम को करो या मरो का नारा दिया था। सवाल नंबर 9, लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था। इसका जवाब है मैच के दौरान जब गेंद ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में चिपकी रहती थी उस वक्त लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो गेंद को अपनी जानिब खींच रही है। सवाल नंबर 10, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया। इसका जवाब होगा ध्यानचंद को जर्मनी के तमाशाइयों ने हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था। इसका जवाब होगा कि 1928 में हॉलैंड को हराकर हिंदुस्तान ने पहला तलाई तमगा हासिल किया था ओलंपिक में। सवाल नंबर 12, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है ध्यानचंद जब हॉकी का एक मैच खेल रहे थे तब गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी हुई मालूम हो रही थी और ऐसा लगता था कि उसे चिपका लिया गया।
लोगों को उन पर शक हुआ, फिर उन्हें दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। उसके बावजूद ऐसा लगा जैसे गेंद उनकी स्टिक में चिपकी हो। तब लोग समझ गए कि ये हॉकी का नहीं बल्कि उनकी कलाइयों का कमाल है। तब से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। सवाल नंबर 13, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करते थे? ध्यानचंद उमूमन नौजवान खिलाड़ियों को ये नसीहत करते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि यकजान होकर पूरी टीम के लिए खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। इस तरह से आप इन सवालात के जवाब लिख सकते हैं। खाली जगह को भरिए। हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है, तो यहाँ आप लिखेंगे मैदान। हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। बंद स्टेडियम में भी आइस हॉकी खेली जाती है। 1928 में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया। पूरी टीम को यकजा होकर खेलना चाहिए, यानी इकट्ठे होकर खेलना चाहिए। अब वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तरीका इसका ये वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा होगी तरीक़ों। सदियों ये जमा है, इसका वाहिद होता है सदी। ज़ाब्ता वाहिद है, इसकी जमा होगी ज़वाबित या ज़ाब्ते। हुक्काम ये जमा है, इसका वाहिद होगा हाकिम। खिदमत वाहिद है, इसकी जमा होगी खिदमात। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। यूनान, कबीले, सदी, तलाई तमगा, अजीम, मैनेजर, लचकदार, मगरूर, खिदमत, बाशिंदा, शोहरत। पढ़िए और समझिए। अहमद ने एक ख़त लिखा, यास्मीन संतरे खाएगी। पहले जुमले में लिखा और दूसरे जुमले में खाएगी से काम का करना ज़ाहिर होता है। ये अल्फाज फ़ेल हैं। अहमद और यास्मीन अल्फाज काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। जो लफ्ज़ काम करने वाले के लिए आता है उसे फ़ाइल कहते हैं। इन जुमलों में फ़ेल और फ़ाइल के अलावा कुछ और बातें कही गई हैं। पहले जुमले में लिखने का असर ख़त पर और दूसरे जुमले में खाने का असर संतरे पर होता है। लफ्ज़ ख़त और संतरे इसम हैं। जिस इसम पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ेल किसी भी काम को कहते हैं और उस काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर उस फ़ेल का असर होता है या जिस पर उस फ़ेल का इम्पैक्ट होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। मिसाल के तौर पर शाहिद खालिद को मार रहा है। अब इसमें शाहिद एक काम कर रहा है मारने का, तो मारना ये फ़ेल हो जाएगा। शाहिद फ़ाइल होगा और किसको? खालिद को मार रहा है, क्योंकि उस फेल का, उस काम का असर खालिद पर है, तो खालिद क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। तालीम हासिल करने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेकर जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना लिखना और खेल दोनों लाजिम हैं, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। मतलब हर चीज़ वक्त पर होनी चाहिए। खेल के वक्त भरपूर खेल होना चाहिए, और जब पढ़ाई का वक्त हो तो मुकम्मल पढ़ाई होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप ये सबक समझ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।